I think for everyone, it's very important that be your authentic self when you come to the organization. And you should always be ready to learn, right? Have a growth mindset. बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको जो अपने आप को सेल करना नहीं जानते। वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, दिन भर एफर्ट करते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं, टाइम पे भी आ रहे हैं। So I think it's very important that as an organization and as an employee, you remain agile. ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होते हुए देखें कि यार ये मेल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में फीमेल्स का काम कर रही हैं। मज़ा तो खूब आने वाला है एंड आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड। बहुत सारे मज़े मज़े के सवाल जब एचआर के लोग आते हैं ना तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मस्ती वाले सवाल होने वाले हैं। बट छोटी सी ही टीम है, आपको ने ऑफिस बहुत बड़ा देख लिया है। द टीम इज ऑफ हार्डली 3-4 people, but the lean team is there. We're trying to make it big. We're trying to create an Nice. impact, and I'm glad that you have seen our videos or episodes. आपने I'm sure short clips देखी होंगी क्योंकि पूरे podcast पे देख नहीं रहा होता generally. So first question, since you have been managing people around different organizations, आपने culture पे काम किया है, employee well-being पे भी काम किया है, वो कौन सी गलतियां हैं जो generally इदारे कर रहे होते हैं employee well-being, employee culture build करते वक्त, और वो नहीं करनी चाहिए? I think well-being से पहले culture पे आ जाता है. I think बड़ा ही normal या ऐसा easy subject लगता है, right? Lot of organizations they think कि जब culture की बात हो रही है तो हमने एक दो चीज़ें ठीक करनी है और हमने शायद let's suppose कहीं पे benefits बढ़ा देने हैं, let's suppose हमने office थोड़ा अच्छा कर देना है, so वो एक culture represent करेगा. While that might be true at the very baseline of it, but I feel उससे बहुत आगे चीज़ें हैं. एक जो गलती शायद organizations culture create करते वक्त करती हैं, like I said, they take the whole culture bit very easy and they feel कि ये HR related है, जबकि cultural build करना HR का काम नहीं है. It has to be top down. It has to be a lot of leaders who have to be involved in it, and they truly should believe in the essence of culture, what you're trying to change as the organization. अगर वो ऊपर से या आपके लीडर्स उसको ओन नहीं करते तो वो कभी भी आपको चीज़ें नीचे आते हुए कभी भी नहीं दिखेंगी. वो ऐसे ही लगेगा कि ये एचआर का इनिशिएटिव है. हाँ. और एचआर की इनिशिएटिव आई एम श्योर आपको भी थोड़ा आइडिया होगा दैट पीपल व्हेन दे नो दैट इट्स एन एचआर इनिशिएटिव देन देयर इज अ काइंड ऑफ आई वोंट से रिलक्टेंस बट एक बायसनेस आ जाती है कि अच्छा ये फिर एक और पॉलिसी आ गई या फिर एक और चेंज करने का तरीका आ गया. आई थिंक बियॉन्ड दैट एक चीज़ जो बड़ी चली हुई है दैट्स अराउंड क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, लेट अलोन द कल्चर ऑफ वेलनेस और द कल्चर दैट यू हैव सेट अप. जब आप कल्चर की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है दैट यू हैव द ट्रस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन बीइंग पार्ट ऑफ द कल्चर, अदरवाइज दे विल नॉट be the true representatives of it, right? You're talking about leaders, representatives. Representatives could be leaders, definitely. Okay. It has to come and the ownership has to come from the top. Okay. But even at the employee level, if you haven't been able to build trust with your people, then it will be a challenge to bring about any change. Now, what do I mean by that? I think what I mean is that a lot of times when you talk about building a culture of trust, most of the leaders, they may talk about just having, few town halls, open sessions. We have an open door policy. That's the culture we have. But ये सब चीज़ें बड़ी बेसिक्स होती हैं. ये जो आप कल्चर में चेंज या शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं शायद वो सिर्फ इन 2-3 चीज़ों से ना आए. आई थिंक कल्चर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है दैट यू हैव टू सी कि आप बंद दरवाज़ों के पीछे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, what are you doing when nobody else is seeing you? That's when the trust or the element of trust starts to kicking in, right? After that, there are a lot of other, I would say, elements to that as well, which is around how much of a psychological safety is there for the individual or for the team, right? Okay. What do I mean by that? मैं बोल रही हूँ मेरा open culture है, but मैं अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है तो क्या उसकी कोई repercussions हैं, क्या उसकी कोई pushbacks हैं, क्या ऐसा है कि मैं सबके सामने तो वो फीडबैक या उन सवालात पे मे बी आई एम ओके विद इट,
but I have it in my head somewhere, and then I try to pinpoint it otherwise, right? साइकोलॉजिकल सेफ्टी, आपने कहा कि सवाल करने की परमिशन तो मिल जाती है अक्सर, लेकिन फिर जवाब के बाद क्या होता है? आप शायद जवाब दे भी दें पब्लिक में कि आप दिल पर लेकर तो नहीं बैठ गए हैं कहीं, आप बाद में तो वो भड़ास नहीं निकाल रहे हैं, ये भी हो सकता है बिल्कुल. व्हाट अदर थिंग्स यू सी साइकोलॉजिकल सेफ्टी में आती हैं? आई थिंक स्टार्ट तो इसी से होता है. स्टार्ट इसी से होता है कि आप एज अ टीम या एज एन ऑर्गेनाइजेशन कितना अलाउ करते हैं अगले बंदे को आप से सवाल करने के लिए, राइट? आई थिंक उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, और हम अक्सर देखते हैं, हम लॉट ऑफ टाइम्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आप की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि आपको पता होता है कि हाँ, ऑन पॉलिसी ऑन पेपर तो लिखा हुआ है कि जी ये साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट है, बट उसके लिए आप हमेशा हिचकिचाते हैं. आप हमेशा देखेंगे एनोनिमस सर्विस जो होते हैं ना, वो बड़े ही कमाल के होते हैं. पीपल आर वेरी फ्री, वो जो दिल में होगा वो लिखेंगे. जहाँ पर आपने उनको बोला कि जी आपका नाम साथ में जाएगा, दैट्स व्हेन देयर इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर अ पिन ड्रॉप साइलेंस. सो उसकी रीज़न ये होती है कि जब वो लेवल ऑफ ट्रस्ट ना टॉप से एस्केलेट नहीं हो रहा होता, राइट? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जब आप बार बार अपनी टीम को बताएंगे कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी पे उतर आएं, ठीक है? उसका ये मतलब नहीं है कि आपने, सो देयर विल ऑलवेज बी सम डूज एंड डोंट्स, सम नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ द कल्चर. लेकिन आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स पहल हमेशा लाइन मैनेजर को ही करनी होती है, लीडर्स को ही करनी होती है. उनको ही आके बताना होता है कि आई एम डूइंग दिस विद माई बॉस मे बी, या अगर फंक्शनलाइजेशन है और मैं किसी फंक्शन के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ अपने बॉस के साथ करता हूँ, मैं पुशबैक्स देता हूँ, मैं उनसे सवालात पूछता हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपने एक डमी वर्ल्ड नहीं क्रिएट करना है. रोबोट्स हायर नहीं किए हैं, आपने इंसान हायर किए हुए हैं. एंड यहीं से एक और चीज़ जो आती है ना, आई थिंक विच इज़ ब्यूटिफुल नाउ, और आई वुड ऑल्सो से कि हाउ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये बात अब आगे आ रही है. जेंडर डिवर्सिटी के अंदर डिवर्सिटी के अंदर हम जेंडर से बियॉन्ड बात कर रहे हैं, विच इज़ मोर अराउंड डिवर्सिटी ऑफ थॉट, राइट? उसका क्या मतलब है कि 4 बंदे आपने हायर किए अपनी टीम के अंदर, और ये एक्सपेक्ट करना एज अ मैनेजर कि ये चारों के चारों जो हैं ये एक ही तरह का सोचेंगे, एक ही तरह की चीज़ डिलीवर करेंगे, आउटपुट एक ही होगा. दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. So the beauty is that how this diversity of thought is going to come together, and ये बिल्कुल ही कोई एक अलग चीज़ बनाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत ही इनोवेटिव हो जाता है, बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है. बट इन चीज़ों को करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि, और आपको ये एहसास है, एक एटलीस्ट एक ट्रस्ट होना चाहिए कि रिपरकशंस मेरे ऊपर नहीं होंगे, या मेरा जो लाइन मैनेजर है वो मुझे बाद में भड़ास नहीं निकलेगी. सो इसका स्ट्रेट अवे आंसर तो ये है कि आपका जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड साइकिल्स हैं, या जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो परफॉर्मेंस रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, वो इतनी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए थ्रू पॉलिसी, थ्रू प्रोसेसेस, कि उनमें सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश ही ना हो, राइट? एंड दैट्स व्हेन आई थिंक, और दूसरी बात ये है कि जब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन और एज लीडर्स सामने आते हैं और आप आके बताते हैं कि ये एक सर्वे निकला हुआ है, बी योरसेल्फ, सो कुछ पहल एम्प्लॉयज को भी करनी होगी. अदरवाइज इट विल बी कि लीडर्स बोलते जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि येस वी आर ओके, आस्क क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज इन प्लेस. करनी पड़ेगी थोड़ा सा एज एन एम्प्लॉय आपको भी वो बैरियर तोड़ना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, और क्या इनिशिएटिव्स हैं, जैसे आप कह रही थी कि डाइवर्सिटी पे भी लोग काम नहीं कर रहे होते, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिससे वो भी सेफ फील करें, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें, तो वो क्या ऐसी एक्टिविटीज होती हैं? आई थिंक सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब आप प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है, सो प्रोजेक्ट में एज अ मैनेजर या एज अ लीडर आपको पता होता है कि आपकी बंदों की या आपकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या खूबियां हैं, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स. आई थिंक वो चीज़ों को सामने लेके आना और उनको एज पर देयर स्ट्रेंथ कोई टास्क या असाइनमेंट्स देना, दैट इज वेयर आप डिवर्सिटी ऑफ थॉट को जो है वो और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे हैं. आप बता रहे हैं कि मैं इसको सेलिब्रेट करता हूँ एज अ लीडर, एज अ टीम, ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेलकम्ड. एंड उसके अलावा आई थिंक इनोवेशन में ये बहुत हेल्प करता है. अलॉट ऑफ टाइम्स आपको बहुत सारे इस तरह के सवालात आपके पास आते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं. लेट्स सपोज यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और सब जो है बस पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जो सी का भी सोच रहा है या मिडवे का भी सोच रहा है, तो उससे यही होगा कि डेफिनेटली आप टोटली एक वेरी क्रिएटिव
चीज़ लेके आते हैं सामने. सो आई थिंक इट्स डिवर्सिटी ऑफ थॉट. देन आप DNI के ऊपर इतनी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं जिसमें मोस्टली हम जेंडर की ही बात करते हैं. जेंडर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि शायद वो पहला स्टेप भी सब लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं किया है, राइट. लेट अलोन कि आप बैकग्राउंड डिवर्सिटी, आप डिवर्सिटी ऑफ थॉट, आप जो है डिफरेंट कल्चर से लोगों को, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोगों को, आई थिंक वो एज ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अभी वक्त है वहाँ पे आने में. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने आप को एफिलिएट किया हुआ है टू सम ऑर्गेनाइजेशंस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे उनको पता होता है कि उन्होंने क्या चीज़ें लेके चलनी है. पर अगर मैं डिवर्सिटी की इन टर्म्स ऑफ जेंडर बात करूँ तो वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ हायरिंग. हाँ. When you bring in an individual into the organization. So उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप एक fair chance देंगे to both male and women to at least get into the pool, right? It cannot be from your thought process कि जी let's suppose sales है, तो सेल्स के लिए शायद मुझे एक मर्द ही चाहिए होगा. सो सारी सीवीज तो ये फिर तो उसी होता है. हिसाब से हो रही ये तो है. हर जगह होता है. बट आई थिंक कॉन्शियसली अभी लोग चेंज कर रहे हैं इसको. हाँ. ऑर्गेनाइजेशंस चेंज कर रही हैं कर बिकॉज रही इट्स नॉट जस्ट आस. बिकॉज आप देखो ना टॉप पे हमारे पास खवातीन फिर आती नहीं है. और ये आप देखोगे कि बिकॉज द इन्फ्लक्स एट द लोअर लेवल्स और एट द मिड टियर लेवल वो इतना कम है कि जो उनकी जर्नी है ऊपर तक आने की आपको वो बहुत कम मिलती है एज अपोज टू द आपने लीडर्स. ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक होते हुए देखे हैं कि यार ये मेल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में फीमेल्स का काम कर रही हैं, या लेट्स से फीमेल स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है. अक्सर लोग सोचते हैं HR में तो सिर्फ खवातीन ही होनी चाहिए. तो आपने ये ब्रेक होते हुए देखा? एब्सोल्युटली. आई थिंक इसका तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको प्लांट साइड पे मिलेगा. आप यूनिलिवर में जाएं, PNG के प्लांट पे जाएं, या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्लांट साइड पे जाएं, सप्लाई में सबसे ज़्यादा आपको खवातीन मिलेंगी. ठीक है. एंड दैट्स अ वेरी टफ जॉब. बट आई थिंक वो एक्सेप्टेबिलिटी आना शुरू हो गई. सेल्स के अंदर भी यू विल सी कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जो हैं वो सेल्स हेड बनी हुई हैं या वो सीनियर सेल्स मैनेजर हैं. दैट्स बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू वेल. सो उसमें ऐसा अब नहीं होता. यस, पहले अगर मैं अपने करियर की, बिकॉज मैंने राइट आफ्टर माई बैंक एक्सपीरियंस आई गॉट इनटू रिक्रूटमेंट एजेंसी. सो उसमें उस टाइम पे बहुत कम कंपनीज होती थी जो हमें कहती थी कि हमें इसके लिए एक डिवर्स पूल चाहिए. बाकी बस हमारा टारगेट होता था कि हमने लोगों को लेके आना है जो रेलेवेंट फील्ड में है और उन्हीं को आगे लेके जाना है. पर आई थिंक ये गैप तो बहुत कम हो रहा है. आप जहाँ पर देखो आपको अकाउंट मैनेजर्स मिलेंगे, HR में आपको बहुत सारे काफी हद तक मर्द आते हुए मिलेंगे, राइट. एंड ऑल्सो टॉक टू मी अबाउट द बर्नआउट. आई एम नॉट आस्किंग ओनली कि आप उसको कैसे मैनेज कर रही हैं, बट ऑल्सो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी. ओके, नाउ यू मैनेज पीपल, राइट? एंड burnout is a thing, especially when you hire young professionals where you have Gen Zs around you. Yeah. वो तो वोकल भी ज्यादा है ना. अब आपने घसीट लिया बूमर्स को, जितना घसीटना था मैंने उसको भी घसीट ही लिया है. बट दे आर मोर ओपिनियनेटेड, या शायद दे वॉइस देयर ओपिनियन वेल. ये फर्क है. तो बर्नआउट अगर हो रहा है, जो कि होता होगा, हाउ डू यू मैनेज दैट? व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट यू टेक? आई थिंक बहुत छोटी चीज़ें हैं बट वो बहुत इजीली हेल्प कर सकती हैं एज ऑर्गेनाइजेशन और मी एज एन इंडिविजुअल एज वेल. आई थिंक जब बर्नआउट होता है तो इसमें सबसे बड़ा टेस्ट होता है आपका और आपका रिलेशनशिप जो आपके मैनेजर के साथ है उसमें, राइट. ऐसा आपका रिलेशनशिप आपके मैनेजर के साथ या कल्चर ऑफ द कंपनी शुड बी सच कि मैं आज जाऊँ और अपने अपने मैनेजर को ये कह सकूँ दैट आई एम फीलिंग दिस वे, राइट. और वो किस तरह हो सकता है कि यू हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव. आई मीन यू कैन शो योर इमोशंस बट आपके आंसर्स जो हैं या आपके जो सवालात हैं वो इमोशन पे बेस नहीं हो सकते, राइट. I'll get this done maybe tomorrow. Yes. Or by the end of next week. आज नहीं कर पाई. Or I'm feeling totally blank right now. So can I take this and get back to you maybe after 2 hours, maybe tomorrow. So you have to set the expectations very straight. And I feel if you have set the organization's culture as such जहाँ पर ये चीजें acknowledge की जाती हैं, आप फास्ट पेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, आपको बहुत कॉमन मिलेगा. बर्नआउट इज समथिंग वेरी कॉमन बिकॉज हाई परफॉर्मेंस कल्चर की बात होती है वहाँ पर कंटिन्यूस चेंजेस की बात हो रही होती है. तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक इट आउट इन अ मैनर वेयर यू आर वेरी ऑब्जेक्टिव एंड
telling your line manager, हाँ. and if let's suppose you have a हाँ. difficult line manager, हाँ. that's where the role of HR or your people partner हाँ. comes in, right? हाँ. जहाँ पर वो आके आपको ये समझाते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं, समझाने की तो बात ही नहीं है, हाँ. आई थिंक, बट इट्स मोर अराउंड कि वो किस तरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं, एंड बीइंग अ ब्रिज बिटवीन यू एज अ मैनेजर एंड द इंडिविजुअल. आई थिंक इट्स मोर अबाउट कम्युनिकेटिंग. तो अगर कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, एवरेज कम्युनिकेशन है, पर आप में कितनी ऑडेसिटी है या गट्स है कि आप उसको थोड़ा बिल्ड कर सकें. अब जैसे आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस कि मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ, और ये तो खैर बहुत ही वोकल हो गए हैं, कुछ भी बोल देते हैं ये लोग, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया था, ये आ जाता है वसीम का जवाब, मैं कल सो गया था, मरियम मैं कल सो गई थी. लेकिन ठीक है, आई मीन अगर लेट्स से आप वो चीज़ जो आपको पूरी करनी थी रात में, वो आपने अगले दिन आकर कर ली है फॉर वट एवर रीजन, बट यू आर कम्युनिकेटिंग कि हाँ ये कल नहीं हो पाया था. Previously what I've been experiencing is कि लोग communicate नहीं करते हैं, and earlier I have seen this that people were just, उनको ये डर रहता है कि यार अगर मैंने ये बोला कि आज ये काम छूट गया था तो she is going to judge me, या वो बुरा बिहेव कर सकती हैं, या वो आगे से रिबेल कर सकती हैं, रेसिप्रोकेट कर सकती है नेगेटिव एनर्जी के साथ. तो हम प्री कंसीव नोशंस होते हैं वो हमारे. यू डोंट. अच्छा, मैं मुनज़्ज़ा से भी बात कर रही थी, शी इज़ फ्रॉम एंग्रो, तो शी वाज सेइंग द सेम थिंग कि मैंने अपनी बॉस के बारे में अज्यूम कर लिया था कि वो अब तो मुझे झाड़ने वाले हैं, जबकि मैंने जब बताया कि मैंने गलती कर दी है तो ही वाज एक्चुअली विद मी कि हम इसे कैसे फिक्स करके आगे डायरेक्टर्स को दिखा सकते हैं. Yeah. तो हमारे प्री कंसीव नोशंस होते हैं कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, जबकि ये हमारे फियर्स होते हैं. इट इज़ जस्ट इन आवर माइंड अनटिल अनलेस कि हाँ आपने कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद आप वैसे सोच रहे हो, तो बात अलग है. लेकिन इवन देन देखो, आई थिंक लाइक यू आर सेइंग ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, बिकॉज ऑफ how the mix is also coming in, younger generation, they're very vocal about it as well, right? तो उनको देखा देखी शायद दूसरी employees भी जो हैं, they know now कि what is right and what is rightfully accepted in the organization. So वो वाली बात अभी भी शायद बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जहाँ पे अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आपकी रिपोर्ट में, आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन में आ जाएगा कि आपने ये डेडलाइन मिस की. But I think and that's where employees mostly come from कि जी it's a big thing, अगर मैंने डेडलाइन, तो उसकी वजह से देर टेकिंग अ लॉट मोर टेंशन, और बर्न आउट होता है, मेंटल हेल्थ उनकी जो है ना वो बिल्कुल ही कहीं और जा रही होती है, और एम्प्लॉय रिटेंशन भी नहीं होता. हाँ, ऑफ कोर्स क्वाइट क्विटर्स भी आपके पास उसी तरह आएंगे. बट ऑफ कोर्स देखो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एम्प्लॉय खुशी खुशी नहीं आता, मेरा तो बहुत सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग है, आई इवन टेल इट टू माई टीम, आई सेड द डे यू फील कि आपको काम में मजा नहीं आ रहा है, देन देयर इज नथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू. अगर कल्चर ठीक चल रहा है, अगर मैंने सारी चीज़ें और कल्चर ने आपकी, दे हैव बीन टेकन केयर ऑफ XYZ थिंग्स, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि कुछ मिसमैच है और नहीं समझ आ रही, राइट, या फॉर वट एवर रीजन्स, अगर मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, लेट्स सपोज, जो मुझे इंस्टेड ऑफ मी थ्राइविंग इन दैट कल्चर मुझे लगता है कि मुझे सप्रेस कर देगी, मैं कभी भी उधर नहीं रह सकूंगी, मैं कभी भी उस पर खुश नहीं हो सकूंगी, चाहे वो मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सैलरी दे रहे हो. So I think it's also to do with the individuals कि आप जो है एक तो ये अच्छा हो गया है कि because of Gen Z's थोड़ी सी और जो है लोग ओपन अप होना शुरू हो गए हैं चीज़ों के बारे में. But I think at the end of the day जब आप बर्नआउट की बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए इवन इफ आई नो कि आगे जो है बहुत ही कोई टैक्सिंग डे होने वाला है, लंबा दिन है, मैं सुबह उठ के जो है सिंपली आई राइट इट डाउन, या मैं जर्नलिंग कर लेती हूँ, कुछ लिख देती हूँ. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो आई लुक एट दैट, आई लुक एट द थिंग्स दैट विल हैपन फ्रॉम मोर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो कि आपका कोई ऐसा सर्कल होना चाहिए जहाँ पर यू कैन बी अ ह्यूमन, राइट, यू कैन नॉट बी टोल्ड कि हाँ ठीक है लेकिन अब करना तो था, ये हो गया. बट आई थिंक यू नीड टू हैव अ सर्कल which treats you beyond your job. So it could be a group of friends, it could be someone within the organization also, जहाँ पर आप बैठ के you can be your authentic self in front of that person. So I think वो चीज़ें आपको, it's all about कि आप ब्रेक लें, रीसेट हों, वापस आएं. लेकिन अगर आपने उस बर्नआउट की सिचुएशन के अंदर ही कंटिन्यू करने की कोशिश की तो ना आपकी परफॉर्मेंस सही होनी है, ना आपने उस तरह की आउटपुट अपनी देनी है, तो वो इवेंचुअली आपके ऊपर ही आएगी. सो इफ लेट्स सपोज इवन कि अगर आपका लाइन मैनेजर ऐसा है जिसके साथ आप शायद ये ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, या आपका कंपनी का कल्चर ऐसा है कि शायद आपको स्ट्रॉन्ग रिप्रिमांड मिलेगा अगर आपने डेडलाइंस मीट नहीं की या कुछ नहीं किया. सो कम्युनिकेट भी आपने करके देख लिया और आपको लग रहा है नहीं कम्युनिकेशन से भी कुछ नहीं हो रहा, मैंने HR को भी इन्वॉल्व करके देख लिया,
बट ये तो साइड बाय साइड हो रहा है ना. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप कितना वक्त निकालते हैं. शायद यू कैन ब्रेक आउट फ्रॉम मीटिंग्स, यू कैन कीप अ 30-minute calendar locked. You can listen to a light music, you can read something that you like, you can talk to a friend. You will have to break out from that circle to then get back into that. Okay, wonderful. I think I have another question which is very interesting, by the way. Biasness in organizations, right? And even progressive organizations have some sort of unconscious biasness. What sort of biasness you have seen? Too many. हाँ. I think, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती जो आए और बोले, चाहे वो जितनी भी प्रोग्रेसिव हो, नो मैटर हाउ मॉडर्न द ऑर्गेनाइजेशन इज, कम्स एंड सेज कि जी हमारे पास कोई बायसनेस नहीं है, या और देयर इज नो अनकॉन्शियस बायसनेस. मजे मजे की बताएं मुझे. आई थिंक ऐसा हो ही नहीं सकता. सो आई थिंक एनी गुड ऑर्गेनाइजेशन विल एक्सेप्ट इट, Okay. विल से यस दिस इज पार्ट एंड पार्सल. हाँ. लोग आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट घरों से आते हैं, तो कोई ना कोई अपनी प्रीकंसीव नोशंस लेके आ ही रहा होता है. ठीक है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट यू कैन डू इज दैट एक्सेप्ट इट and then say, okay, fine, we acknowledge it and we know how to work on it, or we're working on it, right? And create a culture of inclusion, right? Create a culture of respect. I think that is what you as an organization can do, and it's a journey. It can't be कि आपने एक सेशन कराया, उसके बाद आपने बोला जी हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, अब हम अगले साल करेंगे. So it can't be like that. It's a continuous journey, and again, I think every time leaders, you as an HR, your line managers, it's a constant effort that you have to put into the organization. जहाँ तक आप मुझसे पूछ रहे हो कि मज़े मज़े की कुछ बताएं, I think कुछ तो बहुत ही कॉमन या कुछ ऐसी होंगी जो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हैं. Let's suppose if someone is coming from a mat leave, right? आप as a manager or as team members, you may come and say that okay, let's not maybe give her an additional project, let's not give her an additional task because she has too much on her plate. While you're coming from a point of concern and care, लेकिन आपने उस बंदे की एक अपॉर्चुनिटी ले ली उससे, राइट? इट कांट बी लाइक दैट. सो यू हैव टू, और ये बड़ा ही नेचुरल होता है कि आप एक केयर के एलिमेंट से आ रहे होते हैं कि देखो हम तो ख्याल रख रहे हैं, बट समटाइम्स आपको शायद इस तरह के ख्याल की जरूरत नहीं होती. यू हैव टू आस्क द इंडिविजुअल कि ये, एंड दैट्स व्हाट इंक्लूजन इज ऑल अबाउट ना. आप जो डेली कॉन्वर्सेशंस भी कर रहे होते हैं वो इंक्लूसिव तभी होंगी जब आप उस बंदे की राय हर चीज में लेंगे. Another very interesting is, I think ये हमारा थोड़ा सा है भी eloquency के ऊपर, polished accent के ऊपर. ठीक है, जैसे ही बंदा polished accent से कमरे में घुसता है तो एक perception create हो जाता है, oh he is good, इसको काम आता होगा, बोल अच्छा लेता है, right? Whereas those जो introverts हैं शायद, या वो quiet performers हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. वो जो एक इम्प्रेशन एक टाइम में, इसके लिए ना बड़ी मजे की टर्म है, underpaid assets and overpaid liabilities. I read this somewhere where this podcaster was saying कि बहुत सारे ऐसे employees होते हैं जो अपने आप को सेल करना नहीं जानते. वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, दिन भर एफर्ट करते हैं, डिसिप्लिन भी होते हैं, टाइम पे भी आ रहे हैं और डिलीवरी भी दे रहे हैं, लेकिन वो सेल करना नहीं जानते. दीज आर अंडरपेड एसेट. एंड देन देयर आर पीपल जो कम काम करते हैं पर बेचते ज्यादा हैं, और मैनेजर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखते हैं और डायरेक्टर्स को बहुत अच्छा सेल कर पाते हैं इवेंचुअली, या उनका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होता है, एंड दे आर नॉट डिलीवरिंग एज मच एज यू थिंक, बट you overpaid liabilities then. No, you're so right. I think this is absolutely true. और ये बड़ी मजे का होता है. ये हमारा यहाँ पर आई थिंक एज पार्ट ऑफ थोड़ा सा कल्चर भी है ना, कि जिसको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आ गई आपको लगता है अमेजिंग, ये तो बंदा जो है इसको सब कुछ आता होगा. अपीयरेंस पे काम किया हुआ है, बोलता अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है, जीत गए आप. लेकिन आपको पता है कि जो इंटरव्यूज हैं उसमें दिस डज प्ले अ ह्यूज रोल. So if you want to have a first impression, नहीं जज करते आप. First आप जज नहीं कर सकते, but एक आपने subconscious. Why do you think you ask people to get dressed when you come for an interview, to have that presence? Because कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी टेक्निकल नॉलेज से पहले गेज हो चुकी होती है. ये एक इंसान की नेचर है. कोई वॉक इन कर रहा है, आप उसको ऑब्जर्व के बगैर रह नहीं सकते.
So that first impression really matters, right? But I think ये जो आप बात कर रहे हो कि ऐसे लोग जो quite performers हैं, but they're not there in the limelight. That is also because maybe they're introverts. और अगर आप आज उठा के देखो books, there are journals on people who are introverts and the kind of value they bring to the table now. Of course. ठीक है. So I think what is important as an organization कि आप इन individuals को, because देखो ये quiet performers एक हद तक तो चले जाएंगे. जब आपने करियर में अपने लैडर में थोड़ा सा और ऊपर जाना है ना, लीडरशिप पोजीशन पे आपने लीडरशिप पोजीशन पे जाना है, तो उसकी कुछ बियॉन्ड वर्क, बियॉन्ड टेक्निकल वर्क, आपको कुछ चीज़ें दरकार होती हैं. ठीक है, जिसमें सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि व्हाट इज इट दैट यू कैरी विद यू, राइट? तो उसमें विजिबिलिटी की बात आती है. सो इस तरह के लोग जिस तरह आप कह रहे हो या क्वाइट परफॉर्मर्स जो है, उनकी विजिबिलिटी अगर क्रिएट नहीं होती है तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम. yes. For them. And that is when I think organizations today or good line managers today, then after a certain time period, वो फिर अपने लोगों पे soft skills पे invest करना शुरू कर देते हैं. जी. Right? Because they know that they have the potential. It's just that as a good organization, as a good leader, as a good manager, you have to give them one push. और हसल भी आपको इनकरेज करता है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें, जाए लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको सेल करना भी आना चाहिए पर्सनल. हाँ, ये होता है. विजिबिलिटी तो ऑफ कोर्स इट मैटर्स. आई थिंक इफ यू इदारे पर्सनल ब्रांडिंग पे नहीं आपको कभी पुश करेंगे कि बेटा जाओ लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अपने काम के बारे में लिखो, वो इदारे नहीं करते. हाँ, सॉफ्ट स्किल्स पे जरूर काम करेंगे, बट यू हैव टू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ दैट इफ यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड तो आपका काम आगे और इदारे भी देख रहे होंगे. पर पता है, अब पर्सनल ब्रांड आउटसाइड शायद इदारे ना बोले कि आप बनाए, but personal brand inside really matters. Organization then tells you कि आप as a personal brand, आपका internal personal brand क्या है. So सवालात जवाबात उस पे होते हैं. मैं अगर आज head of HR हूँ या मैं head of people हूँ, if I'm not able to create a personal brand, people cannot relate to Hira कि what is she bringing to the table beyond these processes, policies या जो चीजें organization wide चलती हैं, they will never be able to relate to me. And you have to build that relationship with a lot of people. वो trust और relationship कभी भी नहीं आएगा. हाँ, अच्छा, तो इसमें क्या जरूरी है कि आप साइलो पे बैठकर काम ना करें, क्योंकि अगर आप साइलो में बैठ के काम कर रहे हैं तो आपका काम आपके ऑफिस के लोगों को नहीं पता तो बाहर क्या पता चलेगा. बिल्कुल. तो पर्सनल ब्रांडिंग आउटसाइड इज ऑफ कोर्स लिंक्डइन दैट यू बिल्ड और मे बी सम अदर प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स दैट यू थिंक. Inside, you have to have relationship with the people within the organization. Absolutely. And not just the immediate C-level people you're reporting to, but general other departments and their you have to have a good network. Yeah. Right? आपका नेटवर्क होना बहुत जरूरी है. एक बड़ी मजे की चीज हमने ना अभी रिसेंटली की थी. अच्छा, उसमें आपका पर्सनल ब्रांड जब बनता है, so उसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं. आई विल शेयर समथिंग लाइक दैट, राइट? सो उसमें एज अ पर्सनल इंडिविजुअल, राइट, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सब कुछ करती है. ठीक है, आपके लिए लेट्स सपोज प्लेटफॉर्म्स भी हैं, आपके लिए हम मेंटोर्स भी क्रिएट करते हैं, एक कोचेस भी हम लेके आते हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स. व्हाई डू यू वेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली टू कम टू यू एंड टेल यू कि हमने क्या 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 आपके लिए किया है? आप इंडिविजुअली भी रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं. सो लेट्स सपोज हु इज योर वन इंडिविजुअल दैट यू हैव आइडेंटिफाइड, या आपने जिसको आइडेंटिफाई किया है, जिसके पास आप जाके आप अपने करियर एडवाइसेस ले सकते हैं. सही है. ठीक है, कौन आपका ऐसा बंदा है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सर्कल में ऐसा बंदा है हु इज अ चेयर लीडर टू यू? कौन ऐसा आपका बंदा है जो आपको वर्क वाइज अपलिफ्ट कर सकता है? ठीक है, आपकी स्किल्स बढ़ा सकता है, एनहांस कर सकता है, राइट? कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके लिए शायद वॉइस बने, राइट, बिहाइंड क्लोज डोर्स? कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके लिए विजिबिलिटी क्रिएट करेगा? सो दीज आर ऑल सच एलिमेंट्स जो हम इंडिविजुअल शायद पूरा का पूरा फोकस रखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए करेगी और मेंटोर बनाएगी, या हमारे लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम बनाएगी, या वो मुझे बताएगी कि मुझे किसने कोच करना है. While these things will always happen, a good organization will always have this package with you, for you. But as an individual, some onus is on you as well. आपको खुद भी कुछ करना है, एंड वो बड़े मजे के तरीके हो सकते हैं. अब आज मेरे पास शायद ये 5 लोग हैं, मुझे पता है कि मुझे अगर वर्क गाइडेंस लेनी है तो मुझे किस इंडिविजुअल के पास जाना है. अगर मुझे
लेट्स सपोज अपने लिए जो है एक आई नीड जस्ट कोचिंग और मे बी आई नीड टू हैव अ मेंटोर, आई नो कि मुझे किसके पास जाना है। और मुझे अगर लाइफ लेसन्स भी लेने हो किसी से, so maybe in the if not in the work circle I have someone identified outside who's helping me with that, right? So ऐसे लोग आपकी सर्कल में लाजमी होने चाहिए, who's a chair leader, who is XYZ, ताकि आपको पता हो कि सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, अदरवाइज बहुत सी शायद फ्रस्ट्रेशंस ही डेवलप हो। जी, true. What are the other unconscious biases that we see or you have seen? अच्छा, so we've talked about things like अगर कोई मैच से वापस आया है तो उसके लिए आप एक केयर एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो आप उनको बोल रहे हैं अच्छा उसको ये ना दो, या एक्स्ट्रा कर नहीं पाएगी, हाँ, क्योंकि leaves वो कर नहीं पाएगी नहीं होता। द सटल अनकॉन्शियस बायसेस कि हम तो आउट ऑफ केयर कर रहे हैं कि उसकी ऑलरेडी अभी बेबी हुआ है, शी जस्ट कम फ्रॉम सच अ बिग माइलस्टोन, हो सकता है कि उसका पास टाइम ना हो, या हम ये देंगे तो शायद ओवर बर्डन फील करें, सो वो फ्रॉम पॉइंट ऑफ केयर आ रहा होता है। लेकिन अगर आप खवातीन से आज पूछें, आई मीन आई हैड माई बेबी 3 साल पहले, मेरा while I was at Food Panda only, I had a baby, a boy, और मैं जब तक डिलीवरी में नहीं गई हूँ उससे 2 दिन पहले तक काम कर रही थी। That's who I am. I love to be like that. काम का मतलब ये कि I was enjoying it. There was nothing के a gun to my head कि जी आपने काम करना ही करना है, ठीक है। We have really flexible, I know. benefits like that. Yeah. बट आई थिंक दिस इज मी, मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे काम उस टाइम पे ले लेते तो शायद मेरे लिए वो बहुत टफ टाइम होता, बिकॉज देन आई वुड हैव नॉट बीन एबल टू फोकस ऑन माई चाइल्ड। मुझे लगता है कि शायद मेरी जॉब जो है वो कहीं कोई और जो है इस तरह तो नहीं हो रहा दैट आई एम नॉट एबल टू ऐड वैल्यू। सो आई थिंक वो वाला जो पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। आई थिंक मसरूफियत हेल्प्स यू, क्या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। आपको नॉर्मल, आई मीन एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू ईच देयर ओन, ठीक है। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ब्रेक लेती हैं, जिसको फुली ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं और वो वापस आ जाती हैं उसके बाद। लेकिन कुछ खवातीन ऐसी हैं जो अपना मेंटल पीस शायद बरकरार रखने के लिए आफ्टर सम टाइम दे वुड लाइक टू बी लाइटली टचिंग बेस, कि अच्छा क्या चल रहा है मुझे बता दो, अपडेट दे दो, शायद फुली इन्वॉल्व ना हो सकें। लेकिन अक्सर प्रॉब्लम ये होती है जब आप वापस आते हो, आपको पता है मोस्ट ऑफ द वुमेन दे फील अनवेलकम्ड व्हेन दे कम बैक आफ्टर सच अ बिग गैप, राइट? एंड ये कोई ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जानबूझ के ऐसा करती है या लाइन मैनेजर जानबूझ के ऐसा करता है। पर इमेजिन इफ यू कमिंग बैक आफ्टर 3 months, तो इतना टाइम पीरियड हो चुका होता है कि आपको शायद एडजस्टमेंट करने में डिफिकल्टी हो रही हो, लाइन मैनेजर को थोड़ा सा वो। सो इसके लिए हमने बैक देन आई वाज थिंकिंग कि वी शुड हैव, व्हेन आई वेंट थ्रू दिस आई सेड कि लेट्स हैव maternity onboarding program, right? Post maternity leaves onboarding program. So when you go and you come back after 3 months, let's suppose, तो आपको onboard करना चाहिए organizations को like we onboard new candidates, because इतना बड़ा गैप आ चुका है, just to bring you update to it. ठीक है, तो वो होना चाहिए। खैर बहुत सी organizations करती भी हैं, बड़ा अच्छा हैंड होल्ड है। बट इसी तरह अगर इसकी फ्लिप साइड हम देखें, while खवातीन को इतना प्रोटेक्टेड हम रखते हैं, मर्द हजरात को when they want to take paternity leaves, तो शायद एक जो करती हैं, आई थिंक अब तो बहुत करने लगी हैं, अब तो शायद थोड़ा सा डंडा भी आ रहा है। कभी आसपास नहीं देखा किसी को पैटर्निटी लीव लेते हुए, मैटरनिटी। आई थिंक वो भी एक सोशल स्टिग्मा है, बहुत से ऐसे शायद लगता है कि यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हाँ राइट, कि उनको लगता है कि यार मतलब। बट आई थिंक जो वही यंगर जनरेशन जो आ रही है, जो यंग इन्वॉल्व फादर्स हैं, दे लाइक टू टेक दैट बेनिफिट, और वो लेते हैं, और दैट्स वेयर दे फील कनेक्टेड विद देयर फैमिली। ठीक है। सो आई थिंक क्योंकि ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी, ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद इस चीजों को पहले नहीं देखती थी, वो अब इनको और देख रही हैं। बट सिमिलरली यही चीज अगर हम ऐसे फादर्स के ऊपर रखें जो अभी बिल्कुल नए इन्वॉल्व फादर्स हैं, उनका बेबी अभी हुआ है, जब वो अपनी पैटर्निटी की लीव से वापस आते हैं तो उनको कभी भी ऐसा नहीं दिखाया जाता दैट ओ डोंट गिव हिम मोर वर्क, अभी भी बच्चा पैदा हुआ है या अभी जो है उसने ऑफ लिया है। सो दैट्स इट, अनकॉन्शियस बायस। आपको पता है कि मर्द है शायद कर लेगा, खातून है तो शायद उसके लिए प्रॉब्लम बायस है,
बट ऑल्सो डू यू फील कि इदारों को ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी बनाना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इदारे को ऐसा लगता है कि ये खातून वापस आई हैं पर क्योंकि इनके ऊपर एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब तो ये काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगी या ज़्यादा काम नहीं ले पाएंगी क्योंकि घर की तरफ से जिम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चे को संभालना है, उसके लिए सोल्यूशंस क्या बनाए हैं हमने? कुछ इदारे हैं जिनके पास डे केयर है, कुछ के पास वो भी नहीं है. आई वॉज टॉकिंग टू ए फ्यू मदर्स. अभी हम विमेन इन बिजनेस पे एक सीरीज कर रहे हैं, तो आई हैव फीमेल एंटरप्रेन्योर्स ऑन बोर्डेड विद मी फॉर द पॉडकास्ट. तो मैं उनसे पूछ रही थी कि क्योंकि उनका भी 1 year old बेबी है, आई वाज आस्किंग कि आप बच्चे को कहाँ छोड़ती हैं? एंड शी इज लाइक, कराची में एक्सटर्नल डे केयर इतने अमेजिंग है ही नहीं. Yeah. इवेंचुअली या तो मैं अपनी सास के पास छोड़ती हूँ या अपनी अम्मी के पास छोड़ती हूँ, अपनी बहन के पास Yeah. छोड़ती हूँ. There are very few external daycares जिनसे there are very few people just satisfied in external daycare से. Yeah. ठीक है. Rest of the people either rely on their organizations daycare or they rely on सासू माँ and मम्मी जी. That's it. That's about it. तो हमने भी तो वो support system build ही नहीं किया ना यहाँ पर. लेकिन देखो ना, ये थोड़ा कहीं तो उसको, आपको बेबी को और उसको जरूरत भी है कि मदर उसके साथ रहे. तो अगर वो इदारे में ही है, सो माय सिस्टर टीचर्स एट हमदर्द यूनिवर्सिटी. ठीक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा सिस्टम है, उनके पास डे केयर है प्लस ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है. अब वो टीचर है, उसके दिन में 5 लेक्चर्स होते हैं. ठीक है, और उसने वहाँ पे आपके पास सहूलत ये है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव अपना लेकर एक मेड सॉर्ट ऑफ हेल्प रख सकते हैं और आप उसको पे कर दें, आपको जगह दे दी जाएगी. ठीक है, तो अब अगर आप एक हेल्प अफोर्ड कर सकते हैं, आपको पैकेज स्ट्रॉन्ग है, तब तो आपको जगह तो मिल रही है ना. आप इतना तो कर सकते हैं कि अपने लिए हेल्प रख सकें. प्लस क्लासेस खत्म हुई, आप बीच में जाके बच्चे से मिल लिए, फिर वापस आए, क्लास ले ली. दिस सॉर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्लस हैविंग डे केयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जस्ट हेल्प्स मदर्स टू बी मोर सेटिस्फाइड बिकॉज दे हैव देयर किड अराउंड देम. हाँ, अगर नहीं होगा आसपास, घर जाना है वापस, फिर आना है, फिर घर जाना है, फिर आना है, ये वाला कौन सफर करेगा? ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर आप एक एनवायरनमेंट ऐसा नहीं बना रहे हैं जहाँ पे एक मदर थ्राइव कर सकती है, ठीक है, तो फिर तो आपका अपना ही उसमें लॉस है, बिकॉज शी विल बी डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ अटेंशन. आधा टाइम उसका उधर ही होगा कि मेरे बच्चे ने क्या खाया, मेरे बच्चा स्कूल से पिकअप हुआ कि नहीं हुआ. आई थिंक इसीलिए भी ये थोड़ा फोर्स्ड भी है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो शायद कभी भी इस तरफ नहीं जाते या फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाते. बट आई थिंक उनको भी अभी करना पड़ रहा है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड, और वो अदारे भी ये समझते हैं कि अगर हमने ख़वातीन को लेके आना है वर्कफोर्स के अंदर, तो ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं और हमें देखनी पड़ेंगी. ठीक है, बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास शायद डे केयर की जगह ना हो. ठीक है, फिर वो कोलैबोरेट कर सकती हैं कुछ ऐसे डे केयर्स के साथ जहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे डे केयर्स के साथ जहाँ पर उनको पता हो एज अ पेरेंट, अगर मुझे ये पता है कि ठीक है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास डे केयर नहीं है, बट उसने किसी और डे केयर से बात की हुई है और मुझे पता है कि ओनस उसके ऊपर भी है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी है, तो आई बी मोर कंफर्टेबल, राइट? दूसरी चीजें ये हैं कि आप नानी अलाउंस दें. ठीक है, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शायद ये सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको नानी अलाउंस भी देती है, जिसका मतलब ये है कि आप भाई फोकस करें अपने काम के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर जिस टाइम तक आपसे ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करती है. लेट अदर्स टेक केयर ऑफ इट. लेकिन पहले तो बड़ा इजी था. नैनी अलाउंस एग्जिस्ट करता है कहीं पर? आई डाउट, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में करता है. कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जरूर करता है, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस एंड ऑल्सो पीपल कमिंग फॉरवर्ड कि हमें जो है अब जो है ना ये चीजें थोड़ी चेंज होनी चाहिए. I think women are also very vocal about it. They talk about their performance when they say कि अगर आप हमारे बच्चे को जो है वो इस तरह टेक केयर नहीं करें. बट डोंट यू फील कि ये इस तरह भी चेंज हुआ है कि खवातीन स्पेशली उन ऑर्गेनाइजेशंस को चूज करती हैं जहाँ पर या तो डे केयर है या ये है. आप अभी यूनिलीवर को देखें या आप दूसरी मल्टीनेशनल्स को देखें, the ones who have day care, they don't leave. They don't leave. They don't leave. They have high retention. They don't leave primarily because they feel their kids are very secured there, right? So you have to make those choices as well. So organizations के पास बहुत सी ऐसी I think चीजें हो सकती हैं जो in terms of women inclusion कर सकते हैं या mother inclusion के नाम पे कर सकते हैं. Otherwise क्या है कि आप लड़कियों को तो हायर कर रहे हैं, but whenever let's say they get married or they have babies, तो या तो वो फिर इदारा छोड़ के चली जाती हैं या वो सफर कर रही होती हैं खामोशी से. नहीं, तो वो मैंने आपको यही बात बताई ना, अगर आप रिसर्च उठा के देखें तो ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सी कम ऐसी खवातीन हैं जो टॉप लेवल पे अभी भी हों. वो क्यों है?
Mostly you get a lot of influx, a huge influx at the lower level. आपने स्कूल पास किया, यूनिवर्सिटी पास की, आप आ गए, ठीक है, you're excited, you're doing your job, you're doing everything, you're focused. आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया. Now probably you don't have that care system around you. The organization is not taking care of your baby as well, or doesn't have a daycare. You exit. So उसके बीच में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फिर खवातीन ज़्यादा नंबर में ऊपर आएंगी जब सबसे ज़्यादा एग्जिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो मिड लेयर पे हो जाता है, क्योंकि वो उनकी शादी का एक वक्त होता है, राइट? और उनकी शादी हो गई. बहुत सी कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो उनको रिटर्नशिप प्रोग्राम्स भी इसीलिए आए बिकॉज वी वांटेड पीपल टू बी एट द टॉप. एंड आई टेल यू व्हाट, इट इज जस्ट नॉट अबाउट अ नंबर एट द टॉप. सही है. It is so much important when you're taking decisions, and that again the diversity of thought comes in. जब आप एक रूम में बैठे हैं फीमेल लीडर्स होंगी तो वो अपना पर्सपेक्टिव लेके आ सकते हैं, यू नो. सो आई थिंक that is required a lot, not because आपको बस एक खवातीन रिप्रेजेंटेटिव रख देनी है या इंक्लूजन के नाम पे, डिवर्सिटी के नाम पे. आई थिंक नॉट एट ऑल. आई थिंक men also start to looking at the world from a different lens, because वो आपका perception change hota jata hai. And for equally for women also, for me also, I've changed a lot since I've come into this role. I look at their perceptions, I look at their talks, and I understand that how can I add value, and how is it that they're adding value to my personal and professional life. I think it's a two-way street. Also, do you feel एक unbiased opinion ये भी रहता है लोगों का, या biases आ जाते हैं? अनबायस्ड नहीं, सॉरी, बायस्ड ओपिनियन ये रहता है कि अगर कोई खातून दे आर स्टेपिंग अप द लैडर और उनको तरक्की मिल रही है या फिर वो कामयाब हो रही हैं तो वहाँ पे कुछ शेडी है. यू फील दिस इज समवेयर ए बायस्ड पर्सपेक्टिव दैट पीपल हैव? या हाँ, आई फील दैट बट आई थिंक वो चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो रहा है. देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं उनमें बाय वर्च्यू ऑफ द जॉब और द नेचर ऑफ द जॉब कुछ खवातीन ऊपर आ जाती हैं. कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं. पर आई थिंक हमने भी जो एक चीज़ को शायद हमें ज़्यादा देखना पड़ेगा ना. व्हाई डू यू थिंक इट्स DE&I? इट्स डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, राइट? सो यू हैव टू बी equal. So when you talk about interviews, when you talk about diversity, when you talk about all of these topics, I think बहुत सालों से हमने एक चीज़ क्रिएट की है जहाँ पे हमने कहा कि हम women को preference देंगे, right? So when you have created that kind of notion, although which is absolutely correct, आपको पता था कि workforce के अंदर जो है ख़वातीन कम थी, आपने उनको लेके आना था. There were certain areas जहाँ पे आपको काम करना था as an organization, but उससे बहुत ये भी हुआ है कि जो मर्द हजरात हैं या जो हमारे मेल कॉलीग्स हैं, ठीक है, उनको शायद हमने भी ये फेयरनेस इस तरह से बाहर उठ के नहीं है कि हम ये उनको बोलें एज ऑर्गेनाइजेशंस कि वी डू ब्रिंग जेंडर डिवर्सिटी बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फेयरनेस और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट द कंपनी स्टैंड्स फॉर. एट द एंड ऑफ द डे द राइट टैलेंट शुड गेट द सीट. When you start building that notion, जब आप ये बातें करना शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ें कि ये ऊपर आई इस वजह से बिकॉज कोई बायस अटैच्ड है, आई थिंक ये सब चला जाएगा, which by the way is happening now. I think a lot of companies like Foodpanda, we stand for purely on quality and fairness. We're very heavy on diversity, but we cannot compromise on quality, right? It cannot be कि हमने कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हर जगहों का या हर चीज़ों का कोई एक कोटा रख लें और बोलें ख़वातीन ने तो आना ही आना है. आई थिंक द मोर एज ऑर्गेनाइजेशंस यू गो अवे फ्रॉम दोज थिंग्स, ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है. आपको पता होता है कि फेयरनेस के ऊपर बात हो रही है, ये कल्चर फेयर कल्चर एक है जो कंपनी क्रिएट कर रही है, तो मेरे साथ ज्यादती नहीं हुई है. मेरी जगह अगर कोई खातून ऊपर आ गई हैं प्रमोशन के थ्रू, सो इट इज़ नॉट बिकॉज there was something in the name of diversity that happened. She was truly deserving of that position. So वो I think एक notion जो है ना companies को, leaders को at the top, वो tone from the top set होनी चाहिए. ठीक है, okay. And talk to me about hybrid and this online work also, because remote work में क्या होता है, accountability कहीं ना कहीं ऐसा एक perspective है या मे बी preconceived notion है, कह सकते हैं कि remote work में accountability वैसी नहीं हो पाती है. What do you think about that?
नहीं, सच है। आई थिंक बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिमोट वर्क से या हाइब्रिड वर्क से फिर फुल बैक टू वर्क भी आई है, ऑफिस भी आई है, राइट, बैक टू ऑफिस भी आई है। बट आई थिंक बेस्ट वे ये है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट यू कैन डू इज, ये जेंजीज हैं, दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी, दे वांट हाइब्रिड वर्क, दे वांट सम काइंड ऑफ the rhythm going on in their life as well, कि जी हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं ये डेक बाद में कंप्लीट कर लूँ और क्या मैं जाके अपना कोई काम करके आ जाऊँ. सो दीज आर ऑल द चॉइसेस दैट यू हैव टू एज एन ऑर्गेनाइजेशन गिव, राइट. इसलिए आप हाइब्रिड वर्क देखेंगे कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं खत्म कर सकी हैं. कुछ बैक टू ऑफिस आई भी हैं, बट उस पर बहुत से जो है सवालात उठे, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्प्लॉयज weren't happy about it, क्योंकि आपने फ्लेक्सिबिलिटी उनसे ले ली. लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन होना क्या चाहिए, क्लियर गाइडलाइंस, राइट. क्लियर गाइडलाइंस का मतलब ये है कि व्हेन अ मैनेजर एक्सपेक्ट्स यू टू कनेक्ट, you have to be connected. You cannot come late during the meetings, as you cannot come late when you're meeting me one on one. You have to respect the other person's time. आपको do's and don'ts बहुत clear layout करने पड़ेंगे, right? अगर आप बाहर हैं और आप remote work कर रहे हैं, You have to communicate कि मैं इस Communicate. particular time पे काम नहीं कर रही, Yes. या मैं let's say मैं रात में available काम नहीं हूँ. करूँगी, हाँ. right? So I think it's all about communication and the safe guidelines that the company will provide. इसी तरह से एक बायस एक और भी होता है ना कि यूजुअली क्या होता है, मैनेजर्स, पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ देम, आप देखती होंगी कि दे टेंड टू गेट मोर असाइनमेंट्स, दे टेंड टू गेट मोर विजिबिलिटी. वही विजिबिलिटी वाली बात आ रही है इसमें, नहीं होती visibility. राइट. और जो लोग कर भी नहीं हो सकती. लेकिन आई थिंक उसमें भी फिर ऑर्गेनाइजेशंस बीच में आती हैं, राइट, वेयर यू प्रोवाइड दोज ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग टू मैनेजर टू बी अवेयर ऑफ देयर अनकॉन्शियस बायस, राइट. बहुत दफा ये आता है कि जी वो बिकॉज सामने होता है तो उसको असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, और ये होता होगा. समटाइम्स यू नो योर डेडलाइंस इज देयर, समटाइम्स आपको क्विक बात करनी होगी. यू नो हिरा कहाँ है, हिरा शायद आज ऑफिस नहीं आई, वर्क फ्रॉम होम कर रही है. एक पहले अलाइनमेंट इज अ मस्ट, राइट. You cannot just quickly get up one day morning, make message kiya, I'm going to be working from home. I think alignment with the manager is must. If as an organization आपको अपने culture को safeguard करना है, तो जो foundation या जो base है उस organization की, वो बहुत ही basic चीज़ों पे stand करती है, ठीक है, जिसमें the respect is there, respect for time is there, you know, trust is there. I as a manager trust you that you will be available, you will be doing this work. I think ये सारी चीज़ों के बाद ही आप beyond that foundation जा सकते हैं. अगर आप basic elements नहीं complete कर सकते, वो trust मेरा it's a two-way, right? It's not that the employee is asking for trust, but in return, I as an organization or manager or a leader, I'm not getting it. Yeah. So I think वो clear guideline is a must if you're operating in a hybrid environment. Okay. Talk to me about balance, work-life balance. What is it and how is it for you, especially? I don't think that, you know, work-life balance has disappeared, but I think there has been a clear shift, right? There is no such thing as work-life balance या integration की अगर हम बात करें, उसका मतलब ये नहीं है कि you know आपकी ज़िंदगी नहीं है. But I think what is important over here to mention is कि जो shift आया है ना, the shift is more around कि अब 9 to 5 की या 9 to 6 की job नहीं है, हाँ. ठीक है. उसका मतलब ये है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ या देता हूँ, राइट, कि आप 10 बजे आए, आपने बीच में ब्रेक लेनी है, आपका कोई काम है, आप वो काम करें, आप आए. बट एज एन ऑर्गेनाइजेशन आई वुड रिक्वायर यू टू गिव मी द राइट आउटपुट. सही है. या आपकी परफॉर्मेंस नीचे नहीं होगी, एंड दैट्स द फ्लेक्सिबिलिटी और द प्रॉमिस द ऑर्गेनाइजेशंस आर गिविंग. सही है. For us as an individual, I think it's all come down to where and what I can fit in or juggle in between my routine. मैंने इंदिरा नूही जो एक CEO है, उनका आपने भी देखा होगा, आजकल एक बड़ा वायरल वीडियो चल रहा है. I really love that lady. और उन्होंने ये कहा, वो ये कहती हैं कि I have never seen you know work-life balance situation happening. Why so? You're always juggling between the priorities. True. One thing would take priority over the other. Today my work is everything for me, so it may take priority over my personal life, my kids and everything. Then maybe there
comes a time in my life where I feel no, I need to shift and I need to take care of my kids first. तो शायद जो मैं अब beyond अपनी responsibilities work JD से जाती हूँ, I want to do this, I want to do that. Maybe when it comes to that level, I want to do what I'm required to do, and I focus on my kids. So I think you always will have to juggle and prioritize accordingly. That's what it is. That's how it has shifted. And you can name it work-life balance, you can name it work-life integration, however you want to say it or call it. At the end of the day, you're getting out of this as an individual. So you have something in your hand, you have more flexibility, you can do a lot of things that you want to do. As an organization, I am taking the promise from you, or an understanding with the employee कि output, productivity वो नहीं change होगा या वो खत्म नहीं होगा. So a lot of times people are like, this is not in my JD. Employees are like that, ठीक है. Do you think कि organizations की तरफ से clarity नहीं होती so many times, और you feel कि नहीं यार non-ambitious लोग ही ऐसी बातें करते हैं? नहीं, I think बात सारी ये है कि जब आप JDs देते हैं तो वो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट या एट द टाइम ऑफ हायर तो डेफिनेटली आपको एक रोल देना होता है, एक JD देनी होती है, राइट? बट वी ऑल्सो नीड टू सी कि हाउ फास्ट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, हाउ फास्ट द इकोनॉमीज आर चेंजिंग, राइट? उस हिसाब से उसी तरह से वर्क चेंज होता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज एन एम्प्लॉय यू रिमेन एजाइल. आपको बहुत सी चीज़ें अनलर्न करनी होंगी, फिर लर्न करनी होंगी, ठीक है? बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी JD का हिस्सा थी, फिर शायद आगे जाते जाते वो JD का पार्ट नहीं होंगी. बट आई थिंक इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द हाई परफॉर्मेंस कल्चर, राइट? ऐसी जो कल्चर्स होते हैं ना, वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है ना बस ये काम करना है जो मेरी JD में पॉइंट A से B है, बस मैं ये काम करूँगा, which is also fine. But when you talk about high performance, then you have to go above and beyond your JD to give something back to the organization. आपका value add अपना क्या है? एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरी करियर में बड़ा ही नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मैं लोगों को समझा के I wanted to make them understand as well. जब आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है तो आपने JD में जो भी आपको बोला हो कि पॉइंट A B C पे आपने जाना है, आपने पूरे साल उस पे काम किया, और लोग एट द एंड ऑफ द डे दे वांट कि हमें शायद एक्सीड्स या आउटस्टैंडिंग या बहुत अच्छा शायद इसकी रेटिंग होगी, ठीक है? आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज कि जब आप अपनी JD जो आपकी JD का हिस्सा है और आप वही करते हैं, सो यू आर अ सॉलिड परफॉर्मर. You've performed what you were told to do. There was nothing that you added. कर पाते हैं आप. And there was nothing that you added beyond that. जैसे आप हो अभी, आपको मैं बोलूँ कि ये अभी हम पॉडकास्ट भी जो कर रहे हैं, हमने इतना कुछ आपने क्वेश्चंस बनाए हुए सब कुछ, पर जब स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि अरे मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ तो इससे शायद वैल्यू और ऐड हो जाएगी. So that is your value add, right? And you're getting something because of that, right? Wasn't part of your JD maybe, it was not something that told you कि आपने इसको कितना interesting बनाना है, कितना नहीं. But you took the ownership and you said कि no, this is how I think I can add value, right? So उसी तरह से organizations के अंदर भी yes, JD needs to be there. Every role must have a JD. But अगर ये एक notion है कि जो मेरी JD में लिखा है मैं उसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा, then that's where the problem comes in, because organizations are evolving, right? वो इतनी एजाइल होती हैं that and especially fast paced organizations, their goalposts are changing, so they would expect their people also to be agile, to quickly learn and then unlearn and then relearn again, right? So I think these are all the tricks and traits that you as an organization तो शायद वो हो ही रहा होता है by virtue, but as an individual, that's why the concept of agility, that's why the concept of where you think कि यार आपको rigid mindset नहीं होना, growth mindset की बात हो रही होती है. हाँ, exploit नहीं करना चाहिए, right? And that is again where you need to document each and everything. So आपकी JD के बाद आपने projects किए, आपने XY चीज़ें उसके अंदर डाली, so उसकी accountability तो है ना, आपने काम किया है वो. So उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप objective रह के उसके बाद आप जब भी evaluation का time आता है, put those in your objectives and say this is what I've done, this is where I've gone above and beyond. ये मेरा टाइम यहाँ पर ज्यादा लगा है.
that is, I think, a very good advice to people who are just unable to communicate this to their managers or bosses. एंड ऑल्सो अभी हमने वैसे बर्नआउट पे बात की थी, मैं अब डायरेक्टली मेंटल हेल्थ पे आ रही हूँ. हमने मेंटल हेल्थ इनडायरेक्टली भी बहुत सारी बातें कर ली हैं, बट लेट्स से इफ पीपल वांट टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम यू, राइट, when they feel burnout, or let's say when they face certain toxicity at workplace, what are the initiatives that organizations should take regarding mental health? And what would you like to advise to people who are actually facing somewhere toxicity or unable to communicate that? दोनों को advice करनी है एक-एक करके. अच्छा, आई थिंक पहले उस पर बात कर लेते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम डिफ़िकल्टी, राइट, तो आपको किस तरह एड्रेस करना चाहिए. आई थिंक सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारी सोसाइटी में अभी भी एक बहुत बड़ा टैबू है. लोग आए हैं, आते हैं, बात करना अब शुरू हुए हैं, लीव अलोन एंड लेट अलोन दी ऑर्गेनाइजेशंस के वो अब आके मेंटल हेल्थ पे, आपकी मेंटल वेलबींग पे बात कर रही हैं. बाय सोसाइटी वी आर made to believe that we are very strong and everything is great. यही चीज़ एज एन इंडिविजुअल आप फिर फेस करते हैं और आपको होता है कि अच्छा is it okay for me to take help? What if the other person, if he or she finds out, they'll think कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है या ये चीज़ें मेरे काम पे इम्पैक्ट कर सकती हैं. But I think as an individual or as an organization, ये एक इतनी vulnerabilities आपकी होती हैं कि organizations को different चीज़ें आप, एक तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि इसको नॉर्मल बनाना. नॉर्मल किस तरह कर सकते हैं आप? छोटी छोटी चीज़ें शायद कर सकते हैं. आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नजेस भेजें, आप मेंटल वेल बींग से नजेस भेजें. इफ़ यू आर फीलिंग दिस, रीच आउट टू योर लाइन मैनेजर, टॉक अबाउट इट. So there can be certain nudges that you can post on different platforms. आपके different channels हो सकते हैं ताकि आप बात शुरू करें, ठीक है. Once the organization sets the tone तो individual या employees उनको शायद ये समझ आने लग जाती है, confidence आ सकता है क्योंकि fine they're talking about it. ठीक है. दूसरा आप अब जैसे mental health day आ रहा है, so I think that's also one of the greatest times where you can give that understanding that how important it is for you to be in that state of mind जहाँ पर आप अपने लिए भी बहुत खुश हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम सही तरह से कर सकते हैं, ठीक है. सो दीज आर स्मॉल एरियाज जहाँ पे आप काम करते हैं. उसके अलावा आई थिंक द बिगेस्ट थिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू इज, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस करती भी हैं अब उन्होंने मेंटल वेलबींग के नाम पे बहुत सी कोलैबोरेशंस किए हुए हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, साइकोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड किए हुए हैं, purely professional, right? Which means that whatever you have, or आप जो भी बात करते हैं वो even as an HR मेरे तक नहीं आ सकता, right? और ये मैं एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ, because as a psychologist, as a therapist, that's part of your deal, right? You as a doctor, you cannot disclose anything about any individual that you're talking about. So I think ये चीज़ें, ये beliefs, ये ट्रांसपेरेंसी जब आप बार बार ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ओके फाइन, दिस इज जस्ट बिटवीन मी एंड द इंडिविजुअल हु आई एम टॉकिंग टू. जब आप ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो एक और स्ट्रेंथ आपको आ जाती है दैट इसी को इस्तेमाल करने के लिए ही तो दिया है. एंड पीपल हैव ट्राइड, एंड आई नो लोगों को शायद पहले एक नोशन होता है कि यार ये रिपोर्ट कहीं मेरे मैनेजर को ना चली जाए या फिर ये HR के पास नहीं चला जाए. आई मीन थ्रू योर प्लेटफॉर्म आई वांट टू से दिस कि मैंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और जहाँ जहाँ पर भी मेंटल वेलबींग की बात हुई है, साइकोलॉजिस्ट की, थेरेपिस्ट की बात हुई है, इवन एज एन HR, इवन द MD, we do not know anything, not even the name. What as an organization we want you to do is that be very sure of this, ताकि आप जितनी भी बेनिफिट या जितना बेनिफिट ले सकते हैं इन चीज़ों का लें, बिकॉज ये टाइम आजकल ऐसा है, जस्ट नॉट एनीथिंग, इट कुड बी पर्सनल, इट कुड बी प्रोफेशनल, इट कुड बी एनीथिंग. द प्रेशर्स दैट वी हैव टू टेक ऑन डेली बेसिस, ये प्रेशर आज से 5 साल पहले या इवन कुछ सालों पहले तक भी नहीं थे. So understand the environment that we're living in. I think जो भी organizations इन चीज़ों को या mental health को importance देती हैं, I think उनके लिए और उन्होंने जो initiatives लिए हैं उसमें one of the initiatives is that they've hired psychologists or have a collaboration with some platform. या इसकी जगह एक और चीज़ बहुत important होती है जो like you can do is you can have apps like Calm, you can have apps like there's a Headway app है. All it does is that
takes you into the mode of meditation हो गया, या आपने simple soothing music सुने तो उससे आपको कैसे आपने अपने आप को calm down करना है. अच्छा. So different elements that can take you through the journey, right? हमने as an organization in Food Panda, we have different things going on, right? So there is a platform because we place huge importance on employee well-being, right? And we know how important and critical it is to the individual, him or herself, but also as an organization when we talk about culture, right? We cannot have people who talk about burnouts, or who are even talking about it, but yet as an organization we're not able to do anything for them. So I think हम इतना strongly believe करते हैं, and ये I think और भी आसान इसलिए है हमारे साथ या आपके साथ ये conversation करना, because the tone is again set from the top. It's very easy for our leaders, our directors, our even MD to talk about it very much, right? And also emphasize during our, different meetings, different sessions, in our town halls, how it is important to have and be aware that what you're feeling, and at the end of the day, talk about your well-being. So your mental well-being is of utmost importance to us. And it's just not just mental well-being that we're talking about. There are so many other things related to it that again will just completely drift the conversation. Yeah. But financial well-being, your Of other. course, So I think it's all there. It's add to your. But a lot mental of people well-being. think कि अगर मैं employee side से बात कर रही हूँ now, not from an employer perspective, but from an employee perspective, people think कि अगर हम mental health पे बात करेंगे तो हम less committed लगेंगे. And I would not deny that. ठीक है कि ये एक perception है, ठीक है. But देखिए बात तो ये है कि इस बारे में बात ही नहीं होती. ये difficult, ये topic इतना difficult है. Even as a society, अगर हमारे घर में ऐसी कोई चीजें हो रही हो तो हम 2 दफा सोचते हैं कि क्या बाहर किसी को बताना है, ठीक है. You have heard about these things so much that where people have been in depression for so long. On top, they had this mask on where they were smiling, they were happy, but yet they could not reach out to anyone and they could tell कि क्या issues हो रहे हैं. So similarly, organization के अंदर employee का ये aspect ठीक है, ये perception एक create उनके दिमाग में इसलिए हुआ है क्योंकि ये conversation कभी इससे आगे जाती ही नहीं है. आपको as an employee थोड़ा टाइम लगता है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, फिर वो एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे जो है ना एक सीईओ भी अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहा है या एक लीडर भी अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा है. सो आई थिंक वो फिर भी इजी हो जाता है. बट ऑल आई वांट टू से इज irrespective, you have these challenges. Like I said, it's very common these days because of the circumstances that we are facing, right? As a society, as a nation, as on an individual level के ऊपर, work level पे, as an individual, आपका perception जो है वो सही हो सकता है सिर्फ इस हद तक क्योंकि आपने conversations कभी की नहीं है, right? लेकिन ये change तभी होगा जब हम इसको थोड़ा और open करें. उस open करने के लिए I think again it has to be very important that it has to come from the top, जहाँ पे ऐसी vulnerabilities जो हैं वो share हो रही हों जो फिर बाद में दूसरे लोगों के लिए भी easy हो जाए ये conversations करना. But now having said this, अगर ऐसी कभी कोई conversation निकलती भी है जहाँ आप अपने line manager के साथ ये एक personal information share करते हैं या आप अपने mental health से related कोई information share करते हैं, again your systems in as far as the performance systems are concerned, it is so important for them to be objective and have very limited or no availability of subjectivity. कि ये चीज़ें अगर आप ऑब्जेक्टिविटी पे नहीं छोड़ेंगे ना तो वो हो सकता है फिर लोगों को ये भी फेयर होता है कि जी हमारी परफॉर्मेंस में ना आ जाए, हमारा मैनेजर हमें ये ना कहे कि देखो बिकॉज ऑफ दिस शायद इसने. बट आई थिंक अगर एम्प्लॉयर आपको वो कंफर्ट नहीं भी दे रहा, ठीक है, जो कि नहीं देते ज्यादातर लोग, तो अगर वहां से कंफर्ट नहीं मिला डजंट मीन कि आप समझेंगे यार मैं तो कमिटेड ही नहीं हूँ. और क्योंकि we are learning this from Gen Z. Yeah. They are vocal about Yeah. it, right? और वो बहुत ही अगर आप बहुत fair होके बात कर रहे हैं कि let's say if I am not feeling well today and I won't be able to perform the way I should be doing, so better to take 2 hours off or 3 hours off and just relax, and then when I come back तो मैं ज़्यादा एनर्जी के साथ काम और ज़्यादा इन्वेस्टेड रहूंगी और ज़्यादा फोकस होगा मेरा, अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाऊंगी यहाँ पर. तो अगर आप
फेयर बात कर रहे हैं और लॉजिकल बात कर रहे हैं तो अगला वाला भी सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर उसे शर्मिंदा करना आपका बनता है. नहीं, मुझे इन ऑल ऑनेस्टी शायद आई एम श्योर होंगे और ये सिचुएशंस आती होंगी, राइट. लेकिन आई थिंक इसके ऊपर बस वही बात है कि एज एन इंडिविजुअल आप ये सोचें कि व्हाट इज गुड फॉर यू, राइट. एंड देन ऑफ कोर्स यू टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, पर इसको आप बेहतर किस तरह कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए लीडर और एज अ मैनेजर. आप रेगुलर चेक ins रखें, ठीक है. जस्ट अ वेरी कैजुअल check in where you're asking about the individual, how are you feeling, are you okay, do you feel good. When this becomes part of the culture or your weekly norm or cadences, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये कॉन्वर्सेशंस करने में. इट्स ऑल अबाउट यू नो हाउ ओपन यू आर, द कंफर्ट लेवल दैट यूर गिविंग. अगर मैं रेगुलर डेज पे भी जा रही हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इज एवरीथिंग ओके, हाउ डू यू फील टुडे, you know, all of those conversations, small discussions, just for the employee to see that you care, right. The care of the element of care is there. जब आप वो ऐड करते हैं ना तो आपको ये इतना थॉट प्रोसेस में या यू नो एम्प्लॉय की उस लेवल पे चला जाए कि यू नो आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू ऐड वैल्यू. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट. टाइम ऑफ लें, रीसेट करें, कम बैक. इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज लाइक आई सेड बिफोर कि जब प्रोडक्टिविटी आपने कुछ बताया नहीं अपने लाइन मैनेजर को, उसको कुछ पता नहीं है एंड योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग डाउन, then definitely that's a conversation then that starts. Wonderful. I think there's a lot that I can learn from you. I will hold the conversation here to talk to you another time later, maybe around 2, inshallah. But this was fun conversation. Thank you. Before closing the interview, I want to ask you, the young professionals who are watching you, we talked about mental health, we talked about inclusivity, diversity, a lot of other things. You, with your experience up till now, what is that one piece of advice that you'd like to share with the people who are watching? I think for everyone, it's very important that be your authentic self when you come to the organization. And you should always be ready to learn, right? Have a growth mindset. That is what will only take you way above wherever you want to be in your career. But I think the most important element that us as human beings or part of the organization, कभी भी आप ये ना भूलें कि आप एक इंसान हैं. So the element of empathy, care, discussions, I think वो बड़ा ज़रूरी है कि आप as an individual उसको साथ लेके चलें. As long as you're your authentic self और आप उसके ऊपर value add करते हैं, उसके ऊपर learn करते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाते हैं, then nothing like it. आप आज HR को भी अगर देखते हैं, so from that perspective a lot of people say कि AI आ गया है, so jobs might be impacted. I think data के बगैर आजकल जिंदगी चल नहीं सकती. So that's another piece of advice. You should know how to play with data. You should know how to read data. You pick out each and anything right now. Everything is data related. So data को पढ़ना आना चाहिए. उसका कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, आप किस तरह से जो है ना सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट एक उसके अलावा हट के जो एलिमेंट है ना, दैट कम्प्लीटली ह्यूमन बेस्ड. एज HR, आई थिंक वी आर सपोज टू बिकम मोर ह्यूमन्स विद द टेक्नोलॉजी गेटिंग एडवांसर. So I think that is one element which will never be taken away from HR. So bring your authentic self to each and everyone out there. Lovely. Wonderful. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you.